What do you remember about partition? The partition time, yes, this I remember also very well. It's a very, very clear memory I have. The day partition took place, and those people who are our neighbors opposite, Hindus, Muslims, Marag, Kathiawadi, जो भी होता था, they suddenly became enemies. And in front of my, I can still, they cut gala काट के Hindu Muslims, or they threw them in that nala. I've seen it with my own eyes. वो सब एकदम से ये हो गए. कैसे क्या होता था? There was a massacre. Absolute. Before this, they were living peacefully. Yes, absolutely peacefully. हमारा भाई was a famous electrician. उसका aero stores करके होता था, ERO करके, electrical stores opposite. He was considered the best electrician in those days. He had a Sikh partner. The day it came where he just gave the keys to my brother. He says, now all yours, and he ran away. He couldn't stay here. Because the Sikh bhi tha involved, they were after the Sikhs also. Because the parents used to talk, bahar nahi jana, samalna, ye hai. It was horrible. It was horrible. I can't tell you. कि कैसे how people change. एक दिन your भाई बहन है, या दूसरे दिन they are absolute enemies. And then those refugees who came, it was terrible for them. इतने आ गए थे. Karachi was full of it. So जो हमारा जो रास्ता था एकदम, like it was pristine, clean. It was, they used to shit outside our house. They didn't have any There was no infrastructure. lavatory, nothing, कुछ नहीं था. वो उसका कपड़े का वो बनाया, जुग्गी बनाया, वही आके सामने नहाते थे, वही टट्टी करते थे, वही पेशाब करते थे. All that thing used to go into the nala. कितना भी हम लोग ऊपर से करे, भुमरी में लगाए. But then in the end we had to put a wall there. इतना गंदगी के. There used to be NJV High School there, remember? Beautiful area, flowers everywhere. सब काट कुट करके खत्म कर दिया. So this is, and then I started school, and फिर वो तो school भी at 1 o'clock I literally, and we used to get our lunch in school. We had a big hall where all girls used to sit down and have lunch from our tiffin boxes. किसी का यह चोरी कर दिया, किसी का फल ले लिया, किसी के, तो ऐसा होता था. But I used to practically run to the house, have my lunch and come back. It was so close by. And then when I finished school, I was 16 or 17, I don't remember. My parents gave me a present to go to India, Bombay. Okay, this is interesting. So there was this two ships, Sabarmati and Saraswati. There were Sabarmati and Saraswati. There were two ships. They used to run between India and between Karachi and Bombay. Yes. It used to take 2 days, 2.5 days practically. So when I went, it was just after my school, so it was like March, April. Acha, Dariya. And then the tickets in those days, mostly we used to sit, places थे वो उसके ऊपर, डेक के ऊपर. हाँ, तो डेक के ऊपर वो पूरा ये होता था, ट्रंक होती थी, तो ट्रंक वॉज योर पार्टीशन. तो दूसरी बाजू में दूसरा आदमी है, वो ब्लैंकेट बिछाया, वो होल्डर था, तो वो. एंड देन आई वेंट टू बॉम्बे. But there I stayed with my chacha and his family, because वो और जाके से मैंने 2-3, I stayed for nearly 3 months. My pocket money was 200 rupees. इसके अंदर I took do shopping, खाना पीना, present जो भी, 200 rupees in those days was a lot of money. Anyway, I had a good time. But coming back, and that time there was the Asian flu, one of the worst flus in the world. Yes. तो वहाँ मुझे flu भी हुआ. I was very sick. But anyway, when I came back, it was July, month of July. I can imagine the sea. Yes, it's storming out there. So, and those days, there were no mangoes, bananas, यहाँ कुछ नहीं होता था. नहीं, वो तो बाद में सब ये
Karachi, Pakistan had hardly any mangoes or hardly any bananas. तो what we used to get as gifts, तो टोकरे लंबे इतने बड़े बड़े टोकरे आते थे वो उसके वी Fruit, हाँ, तो पूरा वो एक बनाना का, एक कैरी का, एक आम का, ऐसा कर, तो उसमें भरा वो मैंने ले लिया। तो जब भी स्टॉर्म आया तो वो एक वो तो कहाँ जाता था वो भी, और आई गॉट सो सिक So that was my experience. But as a childhood, since my father was in the railways, we used to, all our holiday, summer and winter vacations were in Lahore. भाई मेरी बात सुनो, चीज़ें तो एग्जिस्ट करती हैं, तो सबको पता है, सही है। अब वही वाली बात है कि आप इसको कितना बाय करते हो। अगर मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाना शुरू करूँ ना यहाँ पे, तुम्हारी ऑडियंस बोलेगी यार ये बहुत फेंकता है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार ये वाकई ऐसा सीन है, बट जिसके साथ होती है उसको पता होता है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं कहानियाँ सुनता हूँ ना, तो जब मैं सुन रहा होता हूँ ना, मुझे देख के पता चल जाता है बंदा झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। अब आप अगर आप कहानी की बात करते हो तो ये, अब मैं इन चीज़ों में घुसा हुआ क्यों था, मेरा एक दोस्त था, उसके साथ हम दो दोस्त थे, उसको मैं ड्रॉप करने के लिए जा रहा था रफ़ायाम की तरफ। तो शारा फैसल पर अचानक से क्या हुआ, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि एक ब्लैक शेडो है हवा में, जिससे ये आप देख रहे हो ये शेडो जो नज़र आ रहा है, अब इमेजिन ये बिल्कुल सेंटर में आया हुआ है। अब इस तरीके की चीज़ जो है ना, मैं देख रहा हूँ, मैं ये कोई चीज़ बीच रोड पे आई है और यूं करके वो गायब हुई है। अच्छा, ऐसे टाइम पे अभी सोचता हूँ कि यार हो सकता है स्ट्रीट लाइट का कोई वो हो, हाँ, आप है ना उसको डीबंक करते, पॉसिबिलिटीज निकालते, क्या हो दिमाग सकता आपका फौरन उस पे नहीं वो जाता। क्या हो सकता है स्ट्रीट लाइट का ये हो वो हो। अब मैं यूँ गुजरा, मैंने इसको इग्नोर कर दिया, मैंने कहा हाँ ठीक है हो सकता है, मेरा दिमाग चलता रहता है इस तरह से। अब मेरे बराबर जो मेरा दोस्त बैठा है वो यूं बैठा हुआ नॉर्मल, और फिर अब मैं इसको देख रहा हूँ, मैंने बोला अरे इसको क्या हुआ है सर। वो नाता खान वाला ब्रिज आता है, नाता खान वाला ब्रिज ना टूटा जो रहता है, वो नाता खान वाला ब्रिज सर, वो उतर के उतरा हूँ मैं, दोस्त ने स्टीयरिंग गाड़ी का यूं घुमा दिया, वो फास्ट लेन से गाड़ी यूं होती हुई आई है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अजलान आयतल कुर्सी पढ़, तुझे आयतल कुर्सी आती है। सर रोंगटे मेरे आज भी खड़े हो जाते हैं। मैंने गाड़ी रोकी है, साथ में बाइकों का पंप होता था उस टाइम पे, उसने मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, वो लड़का कोई इतना कोई टॉल ब्रॉड ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल सा पतला दुबला सा स्किनी सा लड़का था वो। ब्रो मैं उसको पीछे से देख रहा हूँ, अचानक से दरवाज़ा खोल के भागा, और मैं देख ही रहा हूँ कि हो क्या रहा है। पेट्रोल पंप पर सारे पठान लोग, सारे अच्छे खासे सेहतमंद तगड़े लोग जो अमूमन होते हैं, ब्रो वो भाग गए। मेरे हाथ में रिस्क है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, खुदा की कसम, वो लिटरली भागे हैं। एक बंदा लिटरली पेट्रोल पंप का जो वो होता है ना, उसको जो पाइप जो होता है, वो लिटरली वो छोड़ के भागा है। और मैं सिर्फ उसको देख रहा हूँ कि अबे इससे कौन डर रहा है। मुझे तो समझ आ गई थी कि पोजेस्ड हो चुका है, कुछ कोई चीज उसको ट्रिगर कर गई है, लेकिन वो जिस तरीके से भागता हुआ जा रहा है, सामने वाले को क्या उसका विजुअल नजर आ रहा है, उन लोग का पीओवी क्या है। हाँ, वो वहां गया, वो हर किसी को क्या बोल रहा है, तुम्हें आयतल कुर्सी आती है, तुम्हें आयतल कुर्सी आती है, तुम्हें आयतल कुर्सी आती है, फड़ 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 हर किसी को बोल रहा है। मैं पीछे से आया, मैंने उसको गर्दन से पकड़ा, मैंने बोला मेरे साथ चल मेरे साथ चल मेरे साथ चल। ब्रो मैंने उसको दोनों हाथ से पकड़ा है, मैंने उसको कस के जकड़ा है, और मैं उसको गाड़ी के पास लेकर आया, गाड़ी के पास बैठा, उसके ऊपर पानी डालना शुरू करा, आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, कुल पढ़ना शुरू करे, जितना जो कुछ भी आता था मैंने उस पर पढ़ा, और उसने अपने आप को ढीला छोड़ दिया, और बस फिर वो यूं गाड़ी में चुप करके बैठ गया। अब मेरा पैर जो है ना थत 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 करके कांप रहा है कि अब मैं करूं, ड्राइव करके घर लेके कैसे जा रहा मैंने कहा मैं करूं क्या, मैंने करना क्या, छोड़ भी नहीं सकता उसको, ये भी नहीं कि उसके घर वालों को मैं फ़ोन करूं क्या है क्या नहीं है। खैर बहरहाल घर गया, उसको ड्रॉप किया, एंड उसकी अम्मी को बताया, उसके भाई को बताया कि यार ये एपिसोड हुआ है, ये कैसा एपिसोड है जो कि फर्स्ट टाइम हुआ। पुराना दोस्त है मेरा, नाज ने कभी मुझसे कोई चीज़ शेयर की कि भाई आए कि कोई चीज़ उसको कोई तंग कर रही हो या ऐसा कुछ नहीं, बोला ऐसा सीन हुआ, तो घर वालों ने वो आई शायद कर दिया, अच्छा हाँ ठीक है चले हम देख लेंगे, थैंक यू बेटा। ये सीन हुआ। फिर एक हफ्ते तक लड़का गायब रहा, एक हफ्ते बाद मुझसे मिला तो मुझसे सॉरी बोलता है, यार सॉरी यार वो तेरा मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है, बोले यार आई डोंट नो बट ये नहीं था मेरे साथ, बट 2014 में मुझे ये चीज़ ट्रिगर हुई, एंड अबे कोई है मेरे साथ जो मेरे साथ रहता है, एंड मैं कभी कभार से ट्रिगर हो जाता हूँ। तो मैंने कहा कैफियत क्या होती है, एग्जैक्टली वो कैफियत क्या होती है, बोलता है बस
पहले तो ये होता था कि पहले ना मुझे कान में हर वक्त बोलने की आवाज़ें आती थी, कोई मम्बलिंग कर रहा है और ऐसी आवाज़ें कि मतलब सुनाई नहीं मतलब बोल रहा है कोई लेकिन समझ नहीं आ रहा। फिर क्या हुआ, फिर जो है वो चीज़ें दिखाई देना शुरू हुई। अब क्या सिचुएशन है, अब ये है कि मैं बहुत यूज्ड टू हो गया हूँ, लेकिन कभी कभार ये चीज़ मुझ पर ओवर पावर हो जाती है। बट वो उस चीज को कंट्रोल कर सकता है फिर भी कि क्या कब हो सकती है कब नहीं हो सकती, नहीं, उसके ऊपर उसको कोई नहीं, control कोई कंट्रोल नहीं, वो एपिसोड्स होते हैं। अब नहीं होते उसको, अब नहीं होते। अभी भी हमारी सलाम दुआ है बहुत अच्छी है, अब नहीं होती, या होते भी होंगे तो बताता नहीं है शायद, बट अब नहीं होते उसको। तो ये इस तरह की सराउंडिंग में मैं बहुत रहा हूँ। आपने एयरपोर्ट वाला रास्ता देखा है, रफायाम वाला, आगे ब्रिज से नीचे से घूम कर आते हैं, ब्रिज के नीचे से यूँ घूम कर आके उल्टे हाथ पे रास्ता जाता है फाटक की तरफ, कॉर्नर पे बैंक भी बना हुआ है। अब रात का वक्त है, 2:30 बज रहे, मैं गाड़ी में, और मैं सामने क्या देखता हूँ, एक इतना बड़ा लड़का है, वो बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ है। जब थोड़ा सा ना वो चढ़ाई है, थोड़ी सी चढ़ाई हुई, मेरी गाड़ी की लाइट रोशनी उस पर पड़ी, अब वो जंप मार के करके जो है ना, मतलब ये नहीं कि मतलब गायब होकर आ गया, कोई मार्वल सीरीज नहीं चल रही, वो अचानक से बहुत फुर्तीली तरीके से लेफ्ट साइड पर आ गया मेरे। अच्छा, चूंकि हमारे अंदर कीड़ा माशाल्लाह से बहुत बड़ा, हमने कहा इसके पैर देखूंगा, पैर, हमने कहा पैर उल्टे होते हैं, अरे हाँ पैर उल्टे होंगे, पैर देखने मुझे, पैर उल्टे होते कि नहीं होते ये भी एक मिथ है। हाँ सर मैं, गाड़ी आगे गई है, अच्छा पहले मैं उसकी शक्ल डिस्क्राइब करता हूँ। पहले मुझे लगा बच्चा शायद थोड़ा स्पेशल है, उसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी, बहुत छोटी सी नाक थी, राउंड फेस था, गर्दन नहीं थी उसकी। अच्छा, ऐसे पॉइंट पे आप सोच सकते हो कि यार हो सकता है बच्चा स्पेशल हो, यू नो, कोई सिंड्रोम हो सकता है, डाउन सिंड्रोम एंड ऑल। उसकी ये शक्ल थी, छोटा सा मुंह, इतनी सी, लिटरली इतनी सी नाक, इतनी बड़ी आंख, बाल उसके बहुत छोटे छोटे थे, गोल मुंह, गर्दन नहीं, ब्राउन कलर का शलवार कमीज पहना हुआ था। ब्रो अब सवाल आता है उसके पैर का। जब मैंने उसके पैर यूं करके देखे तो जो गाय के जो खुर होते हैं ना, जो हूफ्स होते हैं, वो थे। और मैं कसम उठाने के तैयार हूं, मैं अभी भी मेरे हाथ में रिस्क है, मैंने यूं देखा है, अब लिटरली देख, अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे खुद। मैंने गाड़ी को रेस मारी है, मैं भागा हूं, और मैं रोना शुरू हो गया। मैं लिटरली रोने वाला हो गया। मैंने अम्मी को अपनी फोन किया कि अम्मी ये मैंने कुछ देख लिया है। क्या 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 सीन है, रात को 2:30-3 बजे था। अच्छा, फिर वहां जाके मुझे वापस अभी आना था, मैं कुछ पिक करना था वहां से, इसको वापस भी आना था। तो मैं क्या देखता हूँ कि मतलब आने जाने में 5 मिनट में हुआ होगा। अब जब मैं वापस आ रहा हूँ, रास्ता जाने का वही, अगर कोई और भी होगा रास्ता तो मुझे नहीं मालूम। तो मैं अपने लेफ्ट राइट देख रहा हूँ, कोई नहीं है, लेफ्ट देख रहा हूँ, कोई नहीं है, सुनसान। वो एक पटरी यहाँ जा रही है, सुनसान एक पटरी यहाँ जा रही है, ना कोई कचरा चुनने वाला था, ना कोई हीरोइनची था, ना कोई पटरी चोरी करने वाला था, कोई भी नहीं था। मतलब बच्चा कहीं तो आगे पीछे होता है ना, खुला मैदान है, कहीं तो जाएगा। सो ये कुछ चीज़ें लाइफ में, कुछ इंसिडेंट हुए जिस पर हमने पॉडकास्ट बना दी। यानी कि अगर हम क़ायद आज़म जिंदाबाद फिल्म उठाए तो क़ायद आज़म जिंदाबाद फिल्म का जो बाइक है ना, नबील भाई ने कहा कि शाहजी मुझे ये वाला बाइक सही। मैंने कहा सर ये बाइक तो बहुत वजनी है, तो ये जो ट्रेल है ना ये थोड़ा हल्का है। तो कहने लगा नहीं यार शाहजी अगर हो जाए ये वाला। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं, आपका दिल क्या बोलता है? बोला ये हेवी बाइक हो जाए, ये अच्छा लगेगा। मैंने कहा बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मेरे जहन और सोच में भी नहीं है कि मैं एक छोटा सा, यानी आपका जो मोबाइल डेटा केबल है, मेरे वो केबल है जिसके ऊपर फहद मुस्तफ़ा भी बैठा हुआ है और 480 kg बाइक है, और वो कोई 3D नहीं है, कोई एनिमेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, वो लाइव लोकेशन में 10 दफ़ा किया। जबकि जाकिर भाई ने उसको कहा कि नबील भाई खुदा का खौफ करो, ये सारा फोर्स का है, 3D है, ये पठान लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, आपको करके दे रहे हैं। और फिर वो डिज़ाइन भी मैंने किया कि वो ट्रक कैसे जाते हैं वो। फिर ट्रक के अंदर मलबा पड़ा हुआ है, फिर उसमें शीटें पड़ी हुई है, फिर उसने फायर किया, फिर वो डोरी टूटी, वो डोरी टूटने के बाद वो शीटें निकल आया, शीट के ऊपर रैंप बन गया, रैंप पे बाइक उठता है। बहुत अच्छा सीक्वेंस। तो ये घर जाके मेरे को बुखार चढ़ा है। अगर सच पूछो ना तो ये किसी को नहीं पता। फहद मुस्तफ़ा को केबल नहीं लगा हुआ था, सिर्फ हमने बाइक को हैंग किया हुआ था। अगर खुदा न खास्ता ये बाइक गिरता तो फहद मुस्तफ़ा तो बच ही नहीं सकता। वो 35 फीट हाइट पे, वो इतनी हेवी बाइक है, रोड के ऊपर है, हम दो दरिया के पास। तो ये घर जब आया तो मैंने बोला अरे यार वहाँ पे तो हमने उसको वायर ही नहीं लगाया, हालांकि सिस्टम लगाया हुआ था। बस अड़ा उड़ी में जल्दी करो, लाइट जा रही, जल्दी करो, ये करो। ये एक्शन काम में अगर आपने जल्दी बोल दिया ना तो खुदा ना खासा कुछ ना कुछ हो सकता है। तसल्ली का काम है, सुकून का काम है। मैं हमेशा
कोई फीमेल है, अपने पास एक फीमेल रखता हूँ। उस पे सारे, अभी गौरव के साथ जन्मदिन के साथ काम किया, उसमें वो लड़की उसने कूदना था, तो मैंने अपनी लड़की पहले उसको कुदवाया, एकेडमी में सारा कुछ करवा के उसको दिखाया, कहता है वेरी गुड गुड। हम इसी मॉडल को लेते हैं, उसने हमारी लड़की को ही मॉडल लिया। उसमें भी मतलब ऐसी चीज़ें आया ना कि आप कहते हैं कि यार ये पॉसिबल नहीं है। 30 फीट वो लड़की चल रही है और बिल्कुल स्लो कैमरा, वो लड़की जा रही है और 1 टेक शॉट है, और वो विंडो में जाके बैठती है और यूँ देखती है और दूसरी मंजिल से नीचे कूद जाती है। हमारे पास ना मैट्रेस है, ना वो जंपिंग कासिल है। उसने कहा ये आप कैसे करोगे? बाकी तो बाहर का शॉट तो मैंने रिग लगा दिया, बाहर के शॉट रिग के साथ किया। बोले ये अंदर वाला इतना लंबा केबल इसके साथ जा रहा होगा। मैंने कहा ओके गिव मी 5 मिनट्स। हमने दिमाग लड़ाया। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, विदाउट केबल दिस जंप। कहता वाई 2 फ्लोर 30 फीट हाइट। मैंने कहा मसला नहीं। मैंने जब देखा ना कि विंडो है ना, तो मैंने अपनी पाइप बांध के ना, हमने एक डबल बेड का वो साइज बनाया और उसको मैंने बाहर से हैंग किया और 3 फीट नीचे किया। तो कैमरा तो जो है ना वो तो अंदर से है, तो नहीं दिख रहा है। हाँ। लड़की आया और कूदा और वो प्लेटफॉर्म पे आके गिरी है। हाँ। तो उसने कहा वेरी गुड, वो करके दे दिया हमने। और बहुत सारी चीजें शाहजी आप कॉमन सेंस से भी जो है वो निकाल लेते हो। असल चीज़ें मैं तो नहीं देखता हूँ, मैं ये मोबाइल ये नेट पर नहीं देखता हूँ कि यार अगर कोई शॉट आए तो मैं देखो चेक करूँ, नहीं। मैंने 100 to 100% लोग देखा है जो निकालते हैं, चाहे वो सेट डिज़ाइनर है, चाहे वो डांस डायरेक्टर है, चाहे कोई भी है। मैं भी निकालता हूँ फ़ाइट कभी कभार, जब कोई डिमांड होता है। मैं आप अपना रेफरेंस दे दो, आपको किस तरह की फ़ाइट चाहिए। फिर देखो ना, वो कहते हैं नकल के लिए अकल चाहिए। अभी उसके पंच कहाँ से आ रहा है, उसके पंच कहाँ से आ रहा है, वो उसको फॉलो करने में आपके घंटे जाते हैं। तो वो कोई कुरान के अल्फाज नहीं है, कुरान के आयत नहीं है कि आपने सिर्फ यही पढ़ना है। तो यूं करने के बजाय हम यूं करते हैं, यूं कर देंगे, जरूरी तो नहीं है। क्रिएटिव लिबर्टी हमने बेसिकली उनका माइंड सोचना है कि उसको किस तरह की फाइट चाहिए। हाँ बिल्कुल। एक पंच आगे पीछे हो रहा है तो नो टेंशन, उस पर हमने करना नहीं है। बाज़ लोग बोलते नहीं यार ये तो ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा यार कोई फर्क नजर आ रहा है, पंच है ना। 2003 में आके मुझे जब एक सोप ऑफर हुआ खुदा की बस्ती। हाँ। अच्छा मैं उस वक्त तक भी जॉब करता था। 2003 ट्रैवल एजेंसी अभी तक चल रही है। 2003 तक वो मेरे बॉसेस अभी भी मेरे साथ दोस्ती में सब कुछ है। उनकी भी बड़ी सपोर्ट थी थिएटर करने के ज़माने। मैंने 2003 में आके अपनी कश्तियाँ जलाई और मतलब मैंने कहा कि नहीं मैं अब सिर्फ अदाकारी करूँगा। 2004 में जब मुझे राशिद समी का ड्रामा मिला खुदा की बस्ती, जो 100 एपिसोड का ड्रामा था, उन्होंने मुझे कहा बहुत हिट हुआ होगा। बहुत बिल्कुल फ्लॉप हुआ था। नहीं हुआ वो एक्चुअली हुआ ये था, मैं तुम्हें बताता हूँ। हुआ ये था, वो तीसरी दफा बन रहा था। पहले एक दफा बना था लाइव खुदा की बस्ती, फिर एक दफा बना जिसमें बैरोज भाई ने नौशे का रोल किया, काजी वाजिद साहब, ये सारे बड़े अदाकार थे। उसके बाद राशिद समी ने दोबारा उसको उस नॉवेल पे ड्रामा बनाने की कोशिश की और वो उन्होंने शुरू अच्छा किया, लेकिन उसके बाद उसमें ना उसको लंबा पानी कर दिया था, सोप बना दिया था कि अगर आप नहीं मिल रहे तो इसकी शूटिंग कर ली, वो नहीं मिला तो उसकी कुछ भी चल रहा है मतलब साइड पे। तो उस दौरान मैं भी अल्लाह के हुक्म से उस ड्रामे के बीच में ही मैं इतना मसरूफ़ हो गया था कि मैं उस ड्रामे को भी वक्त नहीं देता था। जैसे जब उस ड्रामे की शुरुआत थी तो ऐसी रैंडम कॉल आती थी, हाँ कहाँ हूँ, घर पे आ जाओ, शूट है, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद आपको फिर कैसे किन डायरेक्टर्स ने कॉल किया और फिर कई वहाँ पे ये फील हुआ कि हाँ यार अब लगता है कि उसके बाद मैं तुझे बताऊं? हाँ बताए ना, हम तो सुनने के लिए बैठे। मैं तुझे अब तक बताता हूँ। हाँ। अभी ये अब पता नहीं टीवी के डायरेक्टर का तुझे पता है नहीं पता। हाँ। टीवी के डायरेक्टर अगर मैं नाम लूँ, देखें शुरू से मैरीन जब्बार के साथ मैंने काम किया। हाँ। फिर मैंने शाहिद शफात के साथ काम किया, फिर मैंने सैफी हसन के साथ, सैफी हसन बहुत अच्छा डायरेक्टर, मैंने एहतशामुद्दीन के साथ काम किया, फिर मैंने अंजुम शहजाद के साथ काम किया, जो कि अब तक भी इनके साथ कर रहा हूँ। अभी भी मैं शाहिद शफात, अंजुम और एहतशाम के साथ काम कर रहा हूँ। फिर मैंने हसीब हसन के साथ काम किया, काशिफ निसार के साथ काम किया, फारूक रिंद के साथ काम किया। और मैं समझता हूँ कि मेरी कामयाबी ये है कि मैंने इनके साथ काम किया और मैंने इनके साथ दोबारा तिबारा भी काम किया। घाट घाट का पानी पिया, घाट घाट का पानी पिया। और ये सारे वो नाम हैं, अगर मैं किसी और सेट पे होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ तो वो बराबर वाला या बराबर वाली
बड़े एक्साइटेड होते हैं हाँ। क्योंकि उन्होंने इनके साथ काम नहीं किया होता। हाँ तो ये मेरी अब तक की बड़ी अचीवमेंट, खुशनसीबी, हाँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जितने भी डायरेक्टर हैं, टुच्चे भी हैं हाँ। छोटे मोटे, फिर मैंने नबील कुरैशी का काम हाँ। किया तो ये तो तुच्चा बोलने के बाद आपने तो उनको ये होता था कि यार हम भी इन लोगों के साथ काम करें। तो मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं, हो सकता है मैं सपोर्टिंग एक्टर हूँ, दरमियाने दर्जे का अदाकार हूँ, हाँ। लेकिन मुझे अप्रोच अल्लाह का शुक्र है हमेशा हाँ बड़े डायरेक्टरों ने किया और मैंने उनके साथ काम किया और बार बार काम किया है। नामालूम अफराद जब 1 आई हाँ, तब मैं नौजवान था, मैं तो बच्चा था उस टाइम पे, आप नौजवान हो। सब बच्चे थे। सब बच्चे थे। अब मैं अपने स्कूल में ही था उस टाइम पे, और मैंने वो फिल्म देखी 3 बार थिएटर में जाके। वो सिर्फ इसलिए देखी क्योंकि मुझे उसका एक सीन बहुत पसंद था, मेरा वाला सीन, आपका वाला वो सीन। पूरी फिल्म में एक तरफ, वो यार scene वो बिल्कुल ऐसा ही है, वो पूरी फिल्म एक तरफ और वो सीन एक तरफ। हाँ, भाई उस सीन की कुछ कहानी बताया यार, उस सीन का वो भी बताया रिपीट टेलीकास्ट है सारा यार। लेकिन यहाँ पे तो बनता है क्योंकि सही है। नहीं ना, वो बताया जो आपने तो कवर, वो तो आपने इंटरव्यूज में ऐसा ऊपर से बताया क्योंकि मैंने भी नबील भाई के साथ काम किया है। मैं बताता हूँ जब नामालूम अफराद बन रही थी ना, हाँ। तो सबको पता था नामालूम अफराद बन रही है। नामालूम अफराद का मतलब ये कि कराची की फिल्म है। कराची की फिल्म है। कराची की फिल्म से मुराद ये कि ये वाला साइड यहाँ क्या दिखाना है कराची का। अब मेरा दिल कर रहा था मैं भी उस फिल्म में हूँ, और मैं उस फिल्म में नहीं था और मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं था नबील से। हाँ। इससे ज़्यादा मुझे कॉल आ गई कि ऐसा ऐसा, मैं ओवर एक्साइटेड। मुझे जब बताया एक सीन है, मैंने बोला मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, अच्छा नहीं कर मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं साफ, मैं नबील के मुंह में मैं नहीं करूँगा। उन्होंने बोला मिल ले आके, मैं चला गया मिलने। हाँ। जब मिला तो फिर वो एक होता है ना, आपको पता लगता है कि लगता काम है हो कि रहा है, आप काम फिल्म हो रहा है और चीज़ें हैं, मतलब हाँ। बड़े सारी चीज़ें हैं। बहरहाल मुझे आराम से ही कन्विंस कर लिया नबील ने, और मैंने कैसे इतने आराम से कैसे हो गए जब फोन पे बोल रहे थे? मैं यार वो ये होता है, देखें मैं एक ये बड़ा अहम बात होती है कि मैंने इसको इस रोल में लेना है ना। हाँ तो एक होता है कि अब ये स्क्रिप्ट आया, अच्छा इस रोल के लिए इसको ले लो। हाँ, उसके जहन में पहले से होता है कि ये रोल मैंने इसी से करवाना है। लिखा ही नबील को पता था कि मैंने ये रोल सलीम से ही करवाना है, तो वो किसी भी हवाले से वो नहीं होता, मैंने आपसे ही करवाना है। उस जमाने के हिसाब से शायद मुझे नबील ने पैसे भी ज़्यादा दिए थे, जितने मैं लेता था उससे ज़्यादा दिए थे, या शायद मैंने मांगे थे, मुझे याद नहीं है। तो तो मैंने वो सीन डन कर दिया था। फिर हमने एक इतवार को वहाँ पे शूटिंग कर ली। सदर में एटमॉस्फेयर बना हुआ था, बड़ा अच्छा माहौल बनाया था, लेकिन फिर भी मैं कन्विंस थी। जावेद शेख, मोहसिन अब्बास हैदर, फहद मुस्तफ़ा, और पीछे एक आदमी बैठा हुआ है कचरा कुंडी में कचरा बन के। यार क्या लाइनें थी उस सीन की। एक स्क्रिप्ट अल्लाह मियाँ का भी होता है ना। मैं प्रीमियर पे भी नहीं आया। जब प्रीमियर ख़त्म हुआ तो बहुत सारे छोटे मोटे एक्टर, और सलीम भाई अबे मैं जा, तुम लोग ऐसे ही कर रहे हो, ऐसा भी किया। बोला नहीं वो ये हो गया वो हो गया। फिर नबील ने बोला सलीम भाई देखी फिल्म? मैं नहीं, मैं कैपरी पे जाके फिल्म देखी। तो जब फिल्म देखी तो मेरा दिल ऐसे ऐसे हुआ, मुझे डायलॉग ही सुनाई नहीं दी। इतना शोर था, इतने लाफ्टर थे, इतनी चीज़ें थी, मुझे वाकई सुनाई नहीं दिया वो बोल क्या। लोगों ने जैसे पकड़ा और उसका रिएक्शन दिया, मैं शुक्र अदा किया अल्लाह का कि यार वो एक सीन सलीम भाई, वो उस पे सबसे ज्यादा लाफ्टर था पूरी फिल्म में।